of your camera as well as the mic. Whenever you have asked to any questions, that time you can switch on your mic. Otherwise, keep switch off camera as well as your mic system, so that you can get a good quality. Okay. Whenever you have to ask question, you can switch on. There is no problem in that situation. Today we are going to start Indian polity systems, and the topic which we are going to discuss, that is the union and its territory. Am I audible? Am I audible? आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहे हैं? जी सर। ठीक है. Now we are going to start union and its territory. What is the meaning of union? What is the meaning of states? Can you anybody define it? आप में से कोई बता सकता है यूनियन किसे कहते हैं, यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, कैसे राज्यों का गठन किया जाता है, कैसे उनको हटाया जा सकता है? Is there any idea to anyone? No sir. No. Okay, no problem. Now let's go step by step. Okay. There are how many unions and states? Basically, there are 8 UT. UT means union territory, and states. That is 28 states. 28 states and 8 union territories. Earlier it was 9 union territories after the division of Jammu and Kashmir. Before the division of Jammu and Kashmir, it has status of the full state. But this government has divided it into 2 parts, and 2 union territories has been created. One Ladakh and another was Jammu and Kashmir. But after some time, Daman and Diu, that has been merged. The total number of union territory at present is 8 and state is 28. In this chapter, we are going. ये किसका मोबाइल? Who has switched on their speaker? Kindly switch off it. सर ये देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं चल रहा? ठीक है. आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए. यूनियन ऑफ स्टेट. यूनियन ऑफ स्टेट. Is it visible? What is written here? Can you see it? Yes sir. आपको दिखाई दे रहा है? लिखिए. According to Article 1. Article 1. It states that. लिखते चलिए, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए. It states that भारत is a union of state. BHA, भारत. किसी का बच्चा इसमें कनेक्टेड है? Please switch off their mic. And one person is also switch on their. Mr. Doim Sanjay. Mr. Doim Sanjay, please switch off your this camera. Doim Sanjay. Yeah. When needed to ask question, you switch on your mic. Okay. No need to switch on your camera, because in that situation you will not get good quality of the video and etc.
So avoid unnecessary interferences. Whenever you feel some need, you are free to switch on. Okay. Now, Article 1, which state Bharat is a union of state, is a union of state rather than federation of state, rather than federation of state. There are two words. One word, union of state, and another word, federation of state. These two words have been used in our constitution, and it has some different meanings. Different meaning in sense, union of state means कि India, that is Bharat, is made up of several states. As I discussed, there are 28 states and 8 union territories. But these states and union territory are not free to separate from the country. These states and union territories has not been merged by some agreement. Means they don't have autonomy. Whenever it wants, it can separate from the India. In the case of the Federation of States, like USA, America, which has 50 states, that came at one place by some agreement, and whenever they want, they can separate out. This is the difference between union of state as well as the federation of state. According to the Article 1 of our Constitution, Bharat, that is India, is made up of union of state. How question may be asked? Expected question is that what is name of India? हमारे संविधान में क्या नाम दिया गया है? संविधान में दोनों चीज लिखा है, भारत as a India. Both word has been mentioned in our constitution, and the nature of our constitution is union of states rather than federation of states. Now there are 3 categories of the states. कौन-कौन सी categories हैं? एक तो कैटेगरी है जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, फुल स्टेटहुड. वन इज फर्स्ट स्टेट्स, दैट इज 28 स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, etc. One category is this, which has the full-fledged statehood. Second, union territory. Union territory again divided in 2 categories. In 2 categories in sense, generally union territory is dealt by the center, by the Home Ministry. But there are 3 union territory which has its own state assembly. कौन कौन से? पुडुचेरी, आपको पता होगा, अभी पुडुचेरी का इलेक्शन हुआ है सैटरडे. सेकेंड, दिल्ली. थर्ड, JNK, Jammu and Kashmir. Although it has UT status, but again it has state assembly. That is a different thing. After the division, no election has been conducted. At present, no state assembly is existing. But there is provision. There would be state assembly in Jammu and Kashmir. अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिर यूनियन टेरिटरी, जो रिमेनिंग यूनियन टेरिटरी है, और इन यूनियन टेरिटरीज में क्या अंतर है? समझ में आ रहा है? अंतर केवल ये है कि अगर जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो हेड होते हैं, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड दैट एडमिनिस्ट्रेटर हैज फुल पावर टू टेक एनी डिसीजन. There is no interference of elected government.
But in case of in these three places, Puducherry, Delhi, Jammu Kashmir, Puducherry has its own assembly which have 30 MLAs. Jammu state, Delhi state has own assembly 70 members. Jammu and Kashmir has also assembly. यहाँ पे जो चुनी हुई सरकार होती है, सही तरीके से उनको ज्यादा पावर होनी चाहिए. लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए. लेफ्टिनेंट गवर्नर इज जस्ट नॉमिनल हेड like in states as a governor. But recently Center has passed the bill and it has amended that in case of Jammu and Kashmir, government means lieutenant governor, not chief minister. तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स को वो पावर नहीं होती है जो हमारे स्टेट असेंबलीज में होती है. फुल फ्लेज पावर नहीं है. वो कानून नहीं ज्यादा बना सकते हैं, कोई डिसीजन ज्यादा नहीं ले सकते विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एक्सेट्रा. एंड थर्ड टाइप ऑफ द कैटेगरी दैट इज एक्वायर्ड टेरिटरीज. एक्वायर्ड टेरिटरीज मीन्स can anybody tell acquired territory? अधिग्रहण करना. जैसे मान लीजिए इंडिया किसी से युद्ध करके किसी जगह को ले ले, so that will comes like acquired territory. Another example is acquisition of Goa, acquisition of Puducherry, Daman Diu. तो आप जानते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय ये सारी जगह दूसरे देश के लोगों के पास थी. उसके बाद भारत सरकार ने एग्रीमेंट के थ्रू दबाव डाल करके किसी न किसी तरह इन एरिया को भी भारत में मिला लिया. तो इसके कारण जिसके कारण ऐसे स्टेट जो भारत में आते हैं उनको हम एक्वायर्ड टेरिटरीज कहते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेरिटरी एग्जिस्टिंग इन द इंडिया. नाउ आर्टिकल 2. Article 2. This states that, लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए. Article 2 empowers the parliament. आप लोग लिख रहे हैं. It empowers the parliament to admit into the Union of India or establish new states. Sir, repeat. Article 2 empowers the parliament to admit into the Union of India or establish new state on such terms and conditions as on such admit on such terms and conditions as it thinks fit. इसकी मीनिंग क्या हुई? As it as it thinks, THINKS, thinks fit, FIT. okay. अब आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए. इसकी मीनिंग ये है कि देश में नए राज्यों का गठन कौन करता है? राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, लोकल बॉडी गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज. पार्लियामेंट ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है कि कौन से राज्य बनेगा, कौन से राज्य हटेगा, कौन सी बाउंड्री नहीं होगी, क्या उसका नाम होगा. ये सब अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को दिया गया है. ठीक है ना? तो हमारा आर्टिकल 2 इसी बात को कहता है कि जब सरकार चाहेगी, सोचेगी कि ये सुटेबल चीज है,
So it can establish new state, it can change the boundary of the state, it can change the name of the state, etc. ओके और इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा था उसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया। इसी अधिकार के थ्रू आसाम का नाम असम कर दिया गया, ओडिशा का नाम ओडिशा कर दिया गया। तो दिस पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट असेंबली की ज्यादा रोल नहीं है, क्या रोल है वो भी हम आपको बताने चल रहे हैं। इन आर्टिकल 3 और आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है, आपको इसका हम पीडीएफ फाइल देंगे, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो मोर कंसंट्रेशन शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है ना? ओके सर। तीसरा है, लिखिए, आर्टिकल 3 authorizes the parliament, article 3 authorized the parliament to point A, form a new state, form a new state, ऑथराइज दी पार्लियामेंट, उसके बाद क्या है? parliament to PO, authorizes the parliament to, in which first point A is form a new state by separation of territory, by separation of territory, by separation of territory from any state, from any state oblique states, from any state oblique state, or by uniting any territory, or by uniting any territory okay, this is the point A. जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है देखने में? सर नॉट विजिबल। नो प्रॉब्लम, नॉट विजिबल, बहुत दूर हो गया सर। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा मैं कोशिश और अच्छा से करने की कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड रखिएगा आप। थोड़ा सा आप लोग जस्ट अब आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. नाउ इज इट बेटर? अब Yes, तो मेरे sir. ख्याल से सही दिखाई दे रहा है। हाँ क्लियर है। सर, अब क्लियर है ना? क्लियर है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। हाँ। तो दिस मीन कैमरा पोजीशन दिस इज बेटर, ओके। चलिए पॉइंट 2, थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आफ्टर दैट इट विल सैचुरेट, ओके। इट इज द पॉइंट ए। पॉइंट बी, point B is increase the area of any state. Increase the area of any state. Increase oblique decrease भी कर सकते हैं। Increase oblique decrease the area of any state. Point C, alter the boundary of any state. Alter the boundary of any state. आप लोग अपने माइक को स्विच ऑफ रखिए,
मैं तो फिर मुझे यहाँ से क्वेश्चन वेरी सर ये हेलो थर्ड पॉइंट इज alter the boundary of any state. माइक प्लीज। बैकग्राउंड बहुत आवाज दे रहा है। माइक ऑफ करो भाई। माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो यार। whose microphone is switch on? म्यूट कर दो, सबको म्यूट करो, म्यूट टू ऑल। एक दो ये दो खुले हुए हैं, इनको म्यूट करो। ये जो ये खुले हुए हैं ना, इनको म्यूट कर दो, म्यूट ऑल कर दो। हाँ वो कर पाए। Hello, sir. Sir, हेलो सर, नॉट ऑडिबल। sir, आपका भी म्यूट हो गया। हेलो हेलो अनम्यूट हुआ? यस सर। हाँ ठीक है। नाउ फोन उठा के बोल दो क्या बात है। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, उसको स्विच ऑन करके लगाओ और उसको अगर पूछेगा तो भेज देना हो यूजर आईडी पासवर्ड। हाँ, alter the name of state। अब आप मैं सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं? यस सर। Am I okay? अब स्टेप बाय स्टेप मीनिंग समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? Form a new state by separation of territory from any state or by uniting any state or territory। को भारत सरकार या पार्लियामेंट किसी राज्य का गठन कैसे करता है, पहले इसके बारे में सोचिए। वन पर्सन इज स्विच। ये कौन है? मिस्टर ताबा चीलो। स्विच ताबा चीलो, अपना कैमरा ऑफ करिए प्लीज। प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। प्रोसीजर ये होता है कि किसी भी राज्य के गठन के लिए सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट होता है। At that movements run for a long time, not for 1 year, 2 years, near about 50 years, 60 years, 55 years, 70 years, etc. And when slowly the movement intensifies, then political parties jump in that moment to get the political benefits. When political parties come in this such type of the movement, then they start to promise to the public and the movement peoples, whenever we will come in the power, we will make new states. When political leaders come in power or not come in power, whatever the situation, the procedure is that first state assembly should pass bill to make new states. But another procedure is that if state assembly is not ready to separate the state, then center has power to proceed the such type of the proceeding, in which documents are prepared and that documents are put in the cabinet approval. After getting the cabinet approval, it go in the Lok Sabha, and after passing from the Lok Sabha, it go in the Rajya Sabha, and after that President
send it to the state again if the state has refused to give the permission. If a state has accepted in initial phase, there is no problem. Then president sign it, or after signing the president, the state is separated out or a new state is formed. लेकिन जनरली होता क्या है, कभी भी किसी राज्य की सरकार नहीं चाहती है कि उसके अधिकार को कम किया जाए. जैसे तेलंगाना था, तेलंगाना में सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. स्टेट के लोगों ने बिल पास करके भेज दिया, सेंटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश दैट हैज बीन सेपरेटेड आउट. बट इन 99% केस you will find that state assembly is not ready. In this case, state assembly has very least power. If suppose state assembly refuse to give their assent, then center has power to pass the bill without taking any permission from the state. So this is the procedure to form the state. Second thing, increase or decrease the boundary of any state. Same procedure is again adopted. कि अगर दो स्टेट को मर्ज करना है या किसी स्टेट की बाउंड्री को कम करना है या स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना है, same procedure, bill is placed in the parliament approved it by simple majority. It don't require any special majority. Then after passing from one house, it go into second house. Again, it should be passed by the simple majority, and in this way, you will find that bill is passed. Next, alter the boundary and alter the name. Generally, in case of alter the name, state assembly easily pass the bill. जैसे उड़ीसा की था, उड़ीसा स्टेट असेंबली ने बिल को पास करके पार्लियामेंट को भेजा, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल दिया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, और अल्टीमेटली द नेम हैज बीन चेंज्ड. नाउ आर्टिकल 4, which is concerned with this union and territory. Article 4 states that any change made under this procedure is not treated as an amendment. मतलब किसी भी स्टेट का अगर नाम चेंज हो रहा है, उसकी बाउंड्री चेंज हो रही है, स्टेट का गठन हो रहा है, in all these situations, that is not considered as a amendment bill. So in chapter 1, from article 1 to 4, it has given the procedure of union and state, union territory, as well as the state and the acquired territory. Someone has again switch on their mic. Kindly switch off. Kindly switch off, otherwise I will keep it out from the meetings. मैं बाहर कर दूंगा मीटिंग से निकाल करके, इसलिए स्विच ऑफ कर दीजिए. नेक्स्ट, और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश कब बना हुआ है? कैन एनीबडी टेल मी व्हेन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? The state or union territory. Initially it was union territory, but when it got the status of full-fledged status, 1987, and statehood day कब क्या है? 20th February. 20 February 1987, अरुणाचल प्रदेश got the, नोट कर लीजिए, 20 Feb 1987, Arunachal Pradesh got the status of full statehood, and it got the status
इसका सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस वाज 24th state, means Arunachal Pradesh has been made as a state in the sequence of 24, and in this time 3 states has been formed, that was the Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa. In 1987 3 states that had been created, Mizoram, Goa as well as the Arunachal Pradesh. In 2000 again 3 states has been created. What are the name of that states? 2000 में भी 3 स्टेट का गठन किया गया, कोई आप में से बता सकता है? सर झारखंड। झारखंड, ओके। सेकेंड उत्तराखंड। उत्तराखंड सर। हाँ, थर्ड छत्तीसगढ़। झारखंड has been separated from Bihar. Uttarakhand has been separated from UP, and Chhattisgarh that has been separated from MP. So 3 states has been created in 2000, and in 2013 when the UPA tenure was going to complete, in that time 2013 Telangana has been created by separating from Andhra Pradesh. Okay, and recently in last I think 2019, this Jammu and Kashmir as well as the Ladakh that has been made the union territory. और सबसे लेटेस्ट जो है merging of Andaman, this Daman and Diu etc. हाँ, तो अभी अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे ये सोचिए। आपके एग्जाम में हाउ क्वेश्चन में भी आस्क, एनीबॉडी कैन फ्रेम द क्वेश्चन? सर हाँ या सर, ये जो आपने जो बोला मर्ज बोला ना, दमन एंड दीव, उसके साथ दादर एंड नगर हवेली नहीं आता है साथ में? हाँ, आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता जब है। नेमिंग करेंगे तो साथ में कहेंगे। और उसका लेटेस्ट डाटा एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? दैट इज अवेलेबल ऑन नेट। हाँ, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। वो सब आप दमन दीव और ये दो सब आ रहा है अभी जो रिसेंटली हुआ है, तो ऑल, तो वंस यू वेरीफाई इट फ्रॉम द लेटेस्ट डाटा, ओके? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? अब आपको प्रॉपरली बोर्ड प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? जी सर। चलिए, नाउ एंड द टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिटीजनशिप। आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है? वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? आर एवरीथिंग इज ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं? दैट इज गुड। सिटीजनशिप, अच्छा आप लोग बताइए, अगर आपका मॉर्निंग 7 पे क्लास कर दे तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, 8 बजे थी। 8 बजे थी सर। एक्चुअली 2 रीजन है। एक रीजन हमारा लॉजिक ये है, अर्ली मॉर्निंग योर नेटवर्क वुड बी बेटर। जैसे जैसे दिन होता जाएगा नेटवर्क थोड़ा सा आपके एंड पे खराब हो सकता है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट हैं जो वर्किंग है, उनका 10 बजे से क्लास है, तो दैट्स वाई। चलिए अभी चलने देते हैं, नहीं तो 7:30 पे कर देंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा आगे कर देंगे, उनका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। सिटीजनशिप, कैन एनीबडी डिफाइन द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन? सिटीजन किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? कोई डिफाइन कर सकता है? नेशनलिटी नहीं, नेशनलिटी तो दूसरा चीज है। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रवाद हो गया। सिटीजन की क्या डिफिनीशन है? आर बी सिटीजन और नॉट? यस यस। हाउ वी गॉट द सिटीजनशिप एंड व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सिटीजन? मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे पूछते हैं
How can you prove that you are citizen? How would proof? कैसे proof करेंगे? By showing our certificates. Showing our certificate. और कुछ? अरे भाई जो सिटीजन नहीं है वो भी तो भारत में पढ़ाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जी सर। उसके पास भी सर्टिफिकेट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, नेचुरली होगा। और भी उसके पास आधार कार्ड उसके पास भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर देखिए सिटीजनशिप के देयर इज नो वन लाइन डेफिनेशन। जब से संविधान बना है संविधान में कहीं भी सिटीजनशिप की डेफिनेशन नहीं दी गई। ये बहुत ध्यान से सुनना। हाउ द सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड दैट इज मेंशन्ड। What are the methods to acquire the citizenship that is mentioned in our constitution? But what is the definition of the citizenship is nowhere mentioned in our constitution. Clear? यस सर Is it clear or not clear? Clear. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे प्रूव करें कि हम सिटीजन हैं नहीं हैं क्या हैं, हमें सिटीजनशिप कैसी मिली है, ऑल दीज क्वेश्चन। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चलिए। पहले तो आप लिख लीजिए राइट्स गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत के नागरिक हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। यू नोट डाउन दैट राइट्स। फर्स्ट राइट इज राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट against discrimination rights against discrimination on ground of religion, on ground of religion, on ground of religion, race, caste, etc. Meaning is that the government will not make any discrimination on this ground. Who is Hindu, who is Muslim, who is Christian, who is Sikh, who is Parsi, on that ground गवर्नमेंट शुड नॉट मेक एनी पार्शलिटी। मतलब अगर कोई स्कीम लॉन्च की गई, अगर गरीबों के लिए लॉन्च की गई या किसी के लिए भी लॉन्च की गई, तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम दीज पॉइंट्स इफ दे आर सिटीजन। मतलब ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड्स। सेकेंड पॉइंट इज right to equality of opportunity. Right to equality of opportunity in public employment. In opportunity in public employment. आप लोग नोट कर रहे हैं? यस सर। जो भी गवर्नमेंट सर्विस होगी, जो भी गवर्नमेंट के जॉब होंगे, उसमें भी सारे सिटीजन को इक्वल राइट है। ऐसा नहीं कि एक कास्ट के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दूसरे धर्म के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट शुड नॉट बी। एवरी सिटीजन हैव इक्वल राइट इन सच मैटर्स। थर्ड पॉइंट, right to freedom of speech and expression.
right to freedom of speech and expression, freedom of speech and expression, assembly, association, movement, assembly, association, movement, etc. लेकिन कुछ चीजें मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा, यहाँ भी बताऊंगा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप you have freedom of speech, you have freedom of expression, you have freedom of assembly, you have freedom of association, etc. These rights are not absolute rights. Meaning is that in the case of the freedom of speech, you are not free to whatever you want to speak against anyone. अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा कोई शब्द बोलना शुरू कर दो जो देशद्रोह से रिलेटेड हो जाए और आपके ऊपर केस फाइल हो जाए और आप जेल के अंदर चले जाओ। ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर समझ रहे हैं। फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच में ऐसा नहीं कि हम जिसको चाहे उसको गाली दे दें, सरकार के खिलाफ इतना बोल दें कि एंटी सोशल हो जाएं या एंटी नेशनल हो जाएं। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जो आपका अधिकार है उसको पाने के लिए जो एक संवैधानिक दायरा है उस दायरे में आपको बोलने का अधिकार है, नो डाउट। लेकिन ये नहीं कि जैसे आर्बिट्ररी नहीं है, जो मन पे आएगा सो करेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो एंटी नेशन हो जाए या एंटी सोशल हो जाए। जैसे एक थे मिस्टर त्रिवेदी, उन्होंने क्या किया कि यूपीए गवर्नमेंट से इतना ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने पार्लियामेंट बनाया और पार्लियामेंट के ऊपर टॉयलेट बना दिया और ही हैज बीन अरेस्टेड इन सेडिशन केस। भाई पार्लियामेंट इज ए इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज ए इंस्टीट्यूशन। आप किसी इंस्टीट्यूशन को आप डीमोरलाइज इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि उसके ऊपर अननेसेसरी चीजों को इस तरह से बना दें। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे when we will discuss the case of the fundamental rights। आपको यहाँ पे केवल इतना ही बताने का मकसद है कि ये सब एब्सोल्यूट नहीं है, there are some reasonable restrictions। Now point 4, cultural and educational rights। Cultural and educational rights। Cultural and educational rights। सर हाँ बोलिए। सर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब जनरल स्टडीज में ना सर? हाँ ये सब जीके का है, जीके का है। जीके का है ना सर? दिस इज पार्ट ऑफ जीके। ओके सर। हाँ डोंट थिंक मैं सिलेबस वाइज चल रहा हूँ और जितना जरूरी है उतना ही जा रहा हूँ, मैं ज्यादा जा रहा हूँ ना कम जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये Okay, सब sir. पॉइंट है। एग्जाम में क्या पूछेगा? फोर पॉइंट दैट विल बी गिवन। तो 4 पॉइंट में पूछेगा इसमें से कौन सा राइट है जो सिटीजन को नहीं दिया गया है, ठीक है ना? विच राइट इज नॉट गिवन टू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप उसमें टिक कर देना कि ये राइट नहीं है। Okay. Yes, So, sir. 4th point, cultural and educational right. 5th point, right to vote in election in Lok Sabha. Right to vote in election to Lok Sabha, State Assembly, local body government. अब ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई विदेशी होगा वो भारत में नहीं लड़ सकता है, ठीक है ना? फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सोनिया गांधी इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है? लड़ सकती है नहीं लड़ सकती है? लड़ सकती है सर। लड़ सकती है क्योंकि सोनिया गांधी हैज अडॉप्टेड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया।
इसी तरह मदर टेरेसा थी, शी हैज टेकन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो जो कोई भारत की नागरिकता ले लेगा उसको ये सारे अधिकार मिल जाएंगे जिनकी हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट legislature, right to contest in the election of Lok Sabha, Rajya Sabha, State Assembly. ये next point, eligibility to hold public offices सर like इलेक्शन नोट क्या है सर? right to contest election of Lok Sabha, Rajya Sabha, State Assembly, लोकल बॉडी गवर्नमेंट, मतलब सारे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर उनको सिटीजनशिप मिल गई तो फिर वो इलेक्शन लड़ने का अधिकार उनको मिल गया। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो विदेशी आ जाएगा इंडिया में है, और इफ ही और शी हैज नॉट टेकन द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन he or she is not eligible to contest. Next point, right to hold the constitutional post. Constitutional post क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। आप जानते हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसका जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऐसा भी रहता है कि नेपाल के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, भूटान के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, वो लोग भी अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी। So these are the special rights which are given to the citizen of India. अब मैं बात कर रहा था कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है और कैसे नहीं मिलती है, वो जानना जरूरी है। तो देखिए, पहले तो जब देश आजाद हुआ उस समय 4 तरह के, on 26 January 1950. Do you know when the constitution has been adopted? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 1947. भारत का संविधान की बात कर रहा हूँ। Oh, sir. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। हाँ, Sir, डेट याद कर लो। 26 November 1949. 26 November 1949 that has been adopted, but Adopted. not all point, ठीक है ना। उस समय कुछ पोर्शन संविधान का लागू हुआ था, पूरा का पूरा पोर्शन संविधान का उस समय लागू नहीं हुआ था। Complete constitution has been adopted or implemented on 26 January 1950. क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 4 तरह की सिटीजनशिप दी गई, 4 तरह के लोगों को सिटीजनशिप दिया गया। लिखते चलिए। पॉइंट 1, पहला पॉइंट है a person who had his domicile, a person who had his domicile in India and also fulfill following conditions क्या है? First condition, he was born in India. Point A, he was born in India. Point B, A person, sir, क्या बोला था? A person who had? सर हेडिंग बता दीजिए ना, वीडियो स्टॉप हो गया था। क्या हो गया? सर Hello? हेडिंग क्या Hello? वो बता दीजिए, वीडियो स्टॉप हो गया था बीच में। अच्छा, हेडिंग बता दें पहले। Yes, sir. 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, हेडिंग डाल लीजिए। 4
form for category, 4 category of persons, 4 categories of persons become the citizen of India, become the citizen of India India citizen of India after 26th January 1950. After or on or after, on oblique after 26 January 1950. जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूर्ण संविधान लागू हो गया, उस समय 4 कैटेगरी बनाई गई। उन 4 कैटेगरी के लोगों को भारत का सिटीजनशिप दिया गया। पहली कैटेगरी क्या है? नोट डाउन। फर्स्ट कैटेगरी, a person who has had domicile, who had domicile in India, domicile in India, and also fulfill following condition. क्या कंडीशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन ए, who has born in India. पहली कंडीशन, who has born in India। देखो पहले थोड़ा समझ लो, फिर मैं नोट कराता हूँ। जब भारत आजाद हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, बहुत सारे विदेशी भी भारत में थे। तो सोचा गया कि किसको हम भारत का सिटीजन माने, किसको सिटीजन ना माने, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी। सबको एक जैसे कर देते तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो पहली कंडीशन की गई कि ऐसे लोग जो भारत में डोमिसाइल है, मतलब जो भारत में रह रहे हैं, उन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन ए, who has born in India then become the citizen of India। मतलब 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत में थे और भारत में पैदा हुए थे, वो सब के सब भारत के नागरिक बना दिए गए। सेकंड कंडीशन ये है, either of his parents was born in India, either of his parents was born in India। ओके, जो लोग के पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट, एक भी माता पिता कोई भी भारत में पैदा हुआ है, उनके बच्चे भी भारत के सिटीजन हो जाएंगे 26 जनवरी तक, 26 जनवरी 1950 तक। एंड थर्ड कंडीशन, he has ordinary resident of India, he has ordinarily resident of India, he has ordinarily resident of India for 5 years, before the commencement of the Constitution, before the commencement of the Constitution। Commencement of the Constitution।
जैसे 1950 में हुआ, 1945 से जो लोग भारत में रह रहे थे, 5 साल तक रह चुके हैं, उनको भी इस कैटेगरी में रख करके उनको भारत का नागरिक बना दिया गया, सिटीजन बना दिया गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? किसी को प्रॉब्लम? Sir, clear, sir. No, sir. No, sir. क्लियर? क्या Understand. कौन सा पॉइंट? विच पॉइंट? देखो, जब देश आजाद हो गया, अंग्रेज 1947 में देश को छोड़ के चले गए। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया। उस समय कुछ पोर्शन तो लागू हुआ, कुछ पोर्शन लागू नहीं हुआ। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जब संविधान लागू किया गया तो ये भी डिसाइड किया गया भारत में कौन रहेगा, भारत का सिटीजन किसको कहा जाएगा। तो उसमें 4 कैटेगरीज में बांटा गया कि ये 4 कैटेगरी के लोग भारत के सिटीजन होंगे। उस 4 कैटेगरी का जो पहली कैटेगरी है वो ये है। फर्स्ट कैटेगरी है पर्सन हु हैड डोमिसाइल इन इंडिया ऑन और बिफोर 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को या उसके पहले जो लोग भारत में रह रहे थे, उस सब के सब लोग भारत के सिटीजन हो जाएंगे। कंडीशन है या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से वो भारत में रह रहे हों। तो ऐसे लोगों को भारत का सिटीजन मान लिया गया। नाउ एनी डाउट? अब किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड कैटेगरी पे आइए। सेकंड कैटेगरी, क्योंकि बहुत तरह के लोग उस समय भारत में थे and it was very difficult to decide to who should get the citizenship and who should not get the citizenship. That was a very difficult task. Second point was, और जो अभी मैंने आपको लिखाया, that is under Article 5. लिख लीजिए, under Article 5. That point has been given under Article 5. Next point, a person who migrated, a person who migrated to India from Pakistan, migrated to India from Pakistan, क्योंकि आपको पता है कि उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया भाग रहे थे। Who migrated from Pakistan became an Indian citizen, became an Indian citizen, became an Indian citizen if he or either of his parents, if he or either of his parent, if he or either of his parents or any of his grandparents or any of any of his grandparents, any of his grandparents was born in undivided India, was born in undivided India, was in undivided India, and also fulfill two conditions. क्या कंडीशन है? कंडीशन ए एंड कंडीशन बी।
Condition A is that he migrated to India before he oblique she migrated to India before July 1948. July 7, 1984. July 1948 1948 मतलब ऐसे लोग जो माइग्रेट होकर के इंडिया आए हैं 19 जुलाई 1948 उनको भी भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन आर आफ्टर जुलाई और आफ्टर जुलाई 1948 but register in India आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूँ। देखिए इसका मीनिंग ये है कि जब देश आजाद हो रहा था उस समय हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, मोस्टली दे वर द मुस्लिम। इन दिस एक्सपेक्टेशन की दैट प्लेस वुड बी बेटर और उनको अच्छा वहां पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन 1947 15 अगस्त 1947 के बाद या 15 अगस्त 1947 के पहले जो लोग चले गए और बाद में उनको लगा कि नहीं वहां तो उनको डबल स्टैंडर्ड उनके साथ है, उनको ओरिजिनल मुस्लिम माना ही नहीं जा रहा है, तो दोबारा वो लोग वापस आए देश में। और जब वापस आए, इफ दे हैव रिटर्न टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, तो सरकार ने कहा कि इस डेट तक जितने लोग वापस आ गए हैं उनको सबको हम भारत का सिटीजन मान लेंगे, और जो लोग इसके बाद में आ रहे हैं उनको तब सिटीजन मानेंगे जब वो भारत में उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आफ्टर दैट दे विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो देखो भारत का संविधान बहुत लिबरल बनाया गया कि जो इंडिया से अनडिवाइडेड इंडिया से चले गए थे, अनडिवाइडेड इंडिया ध्यान रखना, उस समय भारत पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, तो उस समय तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही था ना पूरा। तो जो लोग चले गए, चाहे गलत फहमी में चले गए या किसी कारण से चले गए, अगर वो भारत में आते हैं और रहना चाहते हैं तो भारत सरकार ने लिबरल अप्रोच अपना करके उनको सबको भारत का सिटीजन बना दिया। दीज कम्स अंडर द आर्टिकल 6। ये जो पॉइंट्स हैं ये सब आर्टिकल 6 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए डेफिनेशन कहीं नहीं दे रहा हूं, कैसे बनेंगे इसी के बारे में बात कर रहा हूं, कैसे बने ये लोग, लेकिन कोई डेफिनेशन नहीं है। नाउ थर्ड कैटेगरी, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हु हैज स्विच ऑन देयर माइक्रोफोन? अरे भाई आप स्विच ऑन करोगे सबको परेशानी हो रही है ना। दिस वन गाई। Yes, sir. तीन लोगों का स्विच ऑन, रेडमी, उसके अलावा चलिए थर्ड कैटेगरी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का लेक्चर चाहिए तो डिस्टर्बेंस शुड बी मिनिमम। ठीक है? जो क्वेश्चंस हैं, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक द क्वेश्चंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब नॉइज करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि नेटवर्क
At my end, it is very good because I am using broadband of 128 Mbps. तो मेरे नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तीसरा लिखिए, a person who migrated to Pakistan. A person who migrated to Pakistan. परी, मोबाइल में लॉगिन हो गया? हैं? उसका माइक ऑफ करो, म्यूट करो। तो कहाँ से आवाज आ रही है? रिजर्वेशन कौन सा ऐसा आदमी है जो अनम्यूट है और बार प्रॉब्लम कर रहा है? सबको अनम्यूट करो, म्यूट ऑल करो, मैं भी म्यूट हो जाऊंगा। चलो फिर उधर से ठीक है। चलिए सेकंड, a person who migrated to Pakistan. A person who migrated to Pakistan. A person who migrated to Pakistan from India. From India. After March 1st, 1947. After March 1st, 1947. But later returned to India. But later returned to India. But later returned to India for resettlement. For resettlement. Resettlement. Could become an Indian citizen. Could become an Indian citizen could become an Indian citizen for 6 months preceding the date of his application. For 6 months preceding the date of registration. And it is Article 7. आपने नोट कर लिया? Have you written it? Yes, sir. देखिए, पहले वाले में थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था। पहले वाले में ये था कि जो लोग वहां से पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है ना, इसमें कह रहा है पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1st, 1947 बट लेटर रिटर्न। इसमें वो बात थी कि जो पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से दोबारा वापस आए थे, उन लोगों को इस आर्टिकल 7 के अंतर्गत उनको भारत का नागरिक बनाया गया। इसके पहले जो मैंने आर्टिकल 6 में डिस्कस किया था, आर्टिकल 6 में था कि जो लोग पाकिस्तान से आए थे, और कैन यू टेल मी कि एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु केम फ्रॉम पाकिस्तान? कोई हमें एक भी भारत का प्रधानमंत्री बता सकता है जो पाकिस्तान से आया हो? एनीवन? मनमोहन सिंह का नाम सुना है? Have you listened the name of Yes, मनमोहन सिंह? sir. मनमोहन सिंह कहाँ से आए थे? मनमोहन सिंह
is migrated from Pakistan to India. दूसरा कोई फेमस लीडर, लाल किस अडवाणी, अडवाणी भी पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं। और कोई लीडर, अरुण जेटली। तो बहुत सारे ऐसे भारत के नेता हैं जो पाकिस्तान से भारत में आए, और नॉट ओनली दे केम इन इंडिया, दे बिकम द सिटीजन एंड दे रीच ऑन द टॉप मोस्ट पोस्ट। आप सोचिए, भारत में ऐसे लोगों की जगह है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, उनको भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, उनको भी हमने वित्त मंत्री बनाया, उनको भी हमने डिप्टी सीएम बनाया है, डिप्टी पीएम बनाया है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लिबरल। और आप में से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि कोई ऐसा नेता जो इंडिया से पाकिस्तान गया हो एंड बिकेम द हेड ऑफ द पाकिस्तान? एनीवन? कोई ऐसा नेता है जो भारत से पाकिस्तान गया हो और पाकिस्तान का हेड बन गया हो? टाइम क्या हो रहा है? Can anybody tell the name? Anyone? मुशर्रफ? No idea. मुशर्रफ का नाम सुना है? मुशर्रफ? सर परवेज मुशर्रफ मुशर्रफ। दिल्ली, हाँ, परवेज मुशर्रफ जो हैं, उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, और जब बंटवारा हुआ तो वो चले गए पाकिस्तान। और बाद में आपको पता होना चाहिए कि ही बिकेम द हेड ऑफ आर्मी, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, ही बिकेम द, जितनी भी वहां की पोस्ट है सब पोस्ट पे वो तानाशाही करके और वहां का हेड बन गए। तो दिस इज आवर थर्ड कैटेगरी। नाउ फोर्थ कैटेगरी। नाउ फोर्थ कैटेगरी, हाउ पीपल बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। फोर्थ कैटेगरी में उन लोगों की बात करने जा रहा हूं जो एब्रॉड चले गए थे। जैसे बहुत सारे लोग भारत छोड़ के विदेश चले गए थे, उनको लगता था कि भारत कभी आजाद नहीं होगा, भारत में रहने लायक नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विदेश चले गए। बट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, देन दे रियलाइज कि ही शुड रिटर्न इन इंडिया एंड ही शुड टेक द सिटीजनशिप। तो उनके लिए भी प्रोविजन किया गया कि ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो लिख लीजिए फोर्थ कैटेगरी, अ पर्सन हु आर एनी ऑफ हुज पेरेंट, a person who are any of whose parents are grandparents who born or grandparents who born in undivided India. Undivided India. Undivided India, but settled in abroad. But settled in abroad. Yeah, overseas Indian. Settled in overseas Indian may get citizenship after the registration by the diplomatic channel. After the registration by
diplomatic channel. इसका मीनिंग हुआ कि जो लोग विदेश चले गए और उनके फादर या he himself or grandparents was born in undivided India, and if they want to return in India and become the citizenship, they can also got the citizenship. This is the Article 8. समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। Anyone? आ गया। ये 4 तरह के लोगों को भारत का सिटीजन माना गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन 4 के अलावा जो होंगे उनको क्या करोगे? उनको सिटीजन मानोगे कि नहीं मानोगे? चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, ये तो इन चारों कैटेगरी में नहीं आ रहा है। Are anybody satisfying these 4 categories? We are satisfying these 4 categories or not? Not? Is it true or not? तो इसके लिए फिर नया अमेंडमेंट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, 1986, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जो सबसे पहला एक्ट आया 1955, फिर दूसरा एक्ट आया 1986, then 1992, then 2003, 2005, और अभी जो रिसेंट आया है, रिसेंट एक्ट कौन सा है? 2019. Citizenship Amendment Act. I think it is 2016. 19 में पास हुआ है। This act has been passed by Parliament, जिसको हम CAA बोलते हैं, ठीक है ना? Citizenship Amendment Act, बाद में Citizenship Amendment Bill हो गया। पहले कैब था, फिर CAA बन गया ना? इसका नंबर 2016 में, because it was first time introduced in 2016, but that time it has not been passed, but it has been passed after a long धरना प्रदर्शन and etc. in 2019. तो 19 में तो पास हुआ है, लेकिन बिल है 2016 का, ठीक है? अब इसमें बहुत ज्यादा इंडेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड्स के द्वारा इन अमेंडमेंट्स में लोगों को सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए मेथड बताया गया। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, एक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप। एक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि कैसे लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। ACQUISITION, एक्वेशन मीन्स अधिग्रहण, मतलब नया सिटीजनशिप देने का मेथड क्या है। तो इट हैज बीन मेड अमेंडमेंट इन 1955। पहली जो सिटीजनशिप एक्वायर करने का मेथड है, इट इज फर्स्ट बाय बर्थ। इसमें कहा गया कि जो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद अगर पैदा हुआ है और 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई
1987. If anyone who took the birth on 26 January 1950 to this will become the citizen of India. समझ में आया? आ रहा है समझ में कि नहीं? आप लोग यस नो में बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ है वो सबके सब भारत के सिटीजन होंगे। लेकिन फिर इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम ये आने लगी कि अगर कोई विदेशी भी आके भारत में रह रहा है तो उसके बच्चे का जन्म हो जाएगा और बच्चे का जन्म होगा तो भी भारत का सिटीजनशिप पा जाएगा इस नियम से। तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया कि पहला अमेंडमेंट ये किया गया कि जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद और इस 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुए हैं केवल उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जिनके पेरेंट ईदर पेरेंट मतलब मदर या फादर में से कोई भी एक भारत का सिटीजन होगा तो उसके बच्चे को भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर उसमें थोड़ी सी और ज्यादा रूल्स को टफ किया गया कि when the both parent of the child is the citizen of India, then will become the citizen of India by birth. ठीक है? तो हम आप सब इसी बाय बर्थ ही हमें सिटीजनशिप मिलती है। दूसरी कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाय डिसेंट में उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 10 दिसंबर 1992 ऐसे लोग जिनके बच्चे विदेश में कहीं भी पैदा होते हैं तो क्या वो भारत के सिटीजन होंगे या नहीं होंगे? भारत के सिटीजन होंगे कि नहीं होंगे? आपको होंगे। याद होना चाहिए होंगे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्या सबको सिटीजन बना देंगे या कोई उसमें रोक टोक होगा? जैसे आप देखिए करीमा कपूर को बच्चे का जन्म देना था तो विदेश चली गई। अब ये डिसाइड करना कि विदेश की सिटीजनशिप बच्चे को मिलेगी या यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। इसके लिए रूल ये बना दिया गया कि अगर किसी के बच्चे का जन्म बाहर होता है विदेश में होता है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो व्यक्ति उस कंट्री के डिप्लोमेट में यानी जो एम्बेसी होती है उस एम्बेसी में 1 साल के अंदर उस बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय उसके दोनों पेरेंट भारत के सिटीजन होंगे तभी, अदरवाइज नॉट। तो पीपल गेट सिटीजनशिप बाय डिसेंट when their parents, both parents are the citizen of India at the time of the birth, and they have given application for the registration in the diplomat of that country within 1 year. So this is the second category to get the citizenship. Third category एक और है जिसको हम बोलते हैं by registration. By registration. By registration. By registration में उन लोगों को कहा गया है कि अगर कोई विदेशी
लड़की भारत के किसी भी आदमी से शादी कर ले, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई विदेश का डिप्लोमेट उसके बच्चे का जन्म भारत की जमीन पे हो रहा है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे अमेरिका का कोई मान लो डिप्लोमेट दिल्ली के चाणक्यपुरी में रह रहा है और जन्म हुआ दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में, तो उसके बच्चे को बिल्कुल सिटीजनशिप भारत की नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई बंदी है जो विदेश का है, पाकिस्तान का है या किसी और स्टेट का है, जिसको भारत में बंदी करके रखा गया है, तो उसके भी बच्चे का अगर जन्म होगा तो उसको भी भारत की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत उन लोगों को सिटीजनशिप मिलती है जो लोग भारत के लोगों से शादी किए हैं, और आफ्टर द मैरिज दे केम इन इंडिया एंड दे गिव द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजनशिप, देन such type of the people get the citizenship by registration. सोनिया गांधी की जो सिटीजनशिप है वो बाय रजिस्ट्रेशन है, और इसमें एक शपथ पत्र पे भी शपथ लेनी होती है कि हम भारत की नागरिकता स्वीकार करते हैं और जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं वहां की नागरिकता को परित्याग करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो दिस इज द थर्ड वे टू एक्वायर द सिटीजनशिप। अब इसके अलावा फिर क्वेश्चन बनता है, मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा को कैसे सिटीजनशिप मिली? मदर टेरेसा वाज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट? यस, मदर टेरेसा वाज सिटीजन और नॉट? यस सर, यस, डेफिनेटली शी वाज द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसको कहां से मिले? क्योंकि वो तो पहले 4 कैटेगरी में भी नहीं आ रही हैं, और अभी तक जो मैंने कैटेगरी डिस्कस की उसमें भी नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो उसने किसी से मैरिज किया है, ना बर्थ बाय बर्थ है, ना बाय डिसेंट है। तो एक और मेथड है, उसको बोलते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन, NATURalization, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन की 2-3 कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि पहली कंडीशन ये है कि जो देश हमारे यहाँ के नागरिकों को अपने यहाँ की नागरिकता बाय नेचुरलाइजेशन देता है, उस कंट्री को हम सिटीजनशिप दे देंगे। दूसरी चीज कंडीशन ये है कि दैट पर्सन शुड नोन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में जो हमारे संविधान में लैंग्वेज लिखी गई है, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, उनमें से किसी एक भी भाषा को अगर उसको आता है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देता है और उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, देन इंडियन गवर्नमेंट विल गिव द सिटीजनशिप। फिर किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया है, दिस इज द फोर्थ मेथड। एंड फिफ्थ मेथड, नेक्स्ट मेथड इज, सर फोर्थ मेथड को थोड़ा सा बता दीजिए ना फिर से। देखिए फोर्थ मेथड वो है कि उन कंट्री के लोगों को भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी जो ना तो भारत पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखते हैं, ना जिनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, ना किसी से शादी किए हुए हैं। मतलब कोई ऐसी कंडीशन जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, वो कोई भी कंडीशन उसमें सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को भी भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। कंडीशन केवल ये है उनको भारत की एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और उस लैंग्वेज में जो हमारी संविधान में लैंग्वेज लिखी है उसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, असमी भी है, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो कोई भी एक लैंग्वेज अगर है और वो भारत में आना चाहता है और एप्लीकेशन देता है, तो सरकार उसको परमिशन दे देगी। तो जो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा को सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिला था। क्लियर? क्लियर? आर एनी डाउट? और एक कैटेगरी है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन of
टेरिटरी। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर भारत किसी दूसरे देश के एरिया को भारत मिला लेता है, चाहे युद्ध के थ्रू, चाहे एग्रीमेंट के थ्रू, चाहे किसी तरह से, तो जितने लोग उस एरिया में रह रहे हैं उस सब के सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो जैसे गोवा का विलय किया गया तो गोवा के सारे लोगों को भारत की सिटीजनशिप मिल गई। पुडुचेरी का विलय किया गया तो पुडुचेरी के जो लोग वहां रह रहे थे all we became the citizen of India. So these are the methods of acquisition of the citizenship. अब देखिए ये जो CAA था ये क्यों इतना विवादित हुआ? पहले it was the CAB, then it will become the CAA. Citizenship Amendment Bill and Citizenship Amendment Act. Do you know the difference between bill and act? देखिए बिल होता है जब डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है और जब तक पास नहीं हो जाता है और राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं हो जाती है तब तक उस कागज को हम बिल बोलते हैं। जब राष्ट्रपति का साथ सिग्नेचर हो जाता है then it will become the act. इसमें कंट्रोवर्सी इस बात की थी कि भारत सरकार सबको तो सिटीजनशिप देने के लिए इनवाइट कर रही है, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो मुस्लिम होंगे उनको इस अमेंडमेंट के द्वारा भारत का सिटीजन नहीं माना जाएगा। That was the main controversy because it has been divided on the religious ground. जबकि हमारा संविधान कहता है कि आप किसी के साथ you can't distinguish on the ground of religion and etc. ठीक है, अब कोई भी आदमी अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है, या जबरदस्ती टर्मिनेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इसमें भी रूल्स हैं। पहला रूल तो है कि बाई रिनाउंसमेंट लॉस ऑफ सिटीजनशिप, हेडिंग डालिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप। किसका माइक्रोफोन ऑन है? अननेसेसरी। हु इज दिस पर्सन? और यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे तो रिपोर्ट पता लग जाएगी तुरंत। डोंट डू दिस थिंग्स। अरे भाई कौन ऐसा इंसान है? देखिए पहला है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है और वहां के एप्लीकेशन देता है, तो जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहेंगे, वहां के एम्बेसी में एप्लीकेशन देंगे, तो उसका लेटर हमारे देश की एम्बेसी के पास आएगा। हमारे देश की एम्बेसी उसको परमिशन देगी कि हाँ ये छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। तो जब कोई भी व्यक्ति दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेगा तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, पहला चीज। दूसरा बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि सरकार अगर चाहे तो किसी की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दे, खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमानी तरीके से। तभी सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी एनिमी कंट्री को ड्यूरिंग वार पीरियड दे आर गिविंग द बेनिफिट। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, कोई आदमी चोरी छुपे पाकिस्तान के लोगों को हमारी सूचनाएं दे रहा है या कुछ ऐसी मदद करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, then in that circumstances country can terminate the citizenship of that person. So this is the second way of the loss of citizenship. And third way by the deprivation. Deprivation में क्या होता है कि अगर सरकार को ये पता लग जाए कि कोई भी व्यक्ति फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप लिया है, कोई फेक डॉक्यूमेंट से लिया है, तो सरकार उसकी सिटीजनशिप खत्म कर सकती है। So these are the topics of citizenship which is completed.
So today we are going to stop at this level. Tomorrow we will start fundamental rights. और अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे से हम पेपर मतलब एलिमेंट्री मैथ स्टार्ट करेंगे. आप लोग इसको लीव नहीं करिएगा. अभी हम आपको ब्रेक दे रहे हैं एंड एट 10 AM अगेन we will be connected. अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क. हेलो सर. या सर बताइए. सर रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्डिंग. हाँ बोलिए बोलिए. आज कौन सा यूनिट कराए सर आप? क्या कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ करो. क्या कह रहे हैं?